Assalamu alaikum. Today the topic or discussion regarding general surgery is neurosurgical trauma. Neurosurgical trauma is also related to ATLS, that is advanced trauma life support. So before we proceed towards the neurosurgical trauma, we know that neuro means brain or head. So what are the components of our head? What are the injuries that are affecting our head? So when we move towards the parts of head, we have three parts of the head, that is scalp, which is the outermost covering, the skull, which is the bony part of the brain, and the third one is internal brain. So when we talk about the scalp, we know scalp, it is the outermost part or outermost layer of our brain or head. It is supplied by a large number of blood vessels. That means it has a rich blood supply. And whenever there is any laceration, any injury to the scalp, there is profuse bleeding. Our main purpose is to stop that bleeding. If there is any kind of devitalized tissues present in that wound or in that injury, we have to debride that devitalized tissue and then suture the wound. Now when we look at the book, what is it written here? The same is written here that the scalp has rich blood supply and laceration in the scalp can give rise to severe bleeding. और इसका जो हमारे पास मैनेजमेंट होती है वो वाया डिब्राइटमेंट होती है and then suturing of the wound. When we talk about the skull fractures or skull injuries, what does it mean? इसका मतलब ये हुआ है कि any kind of crushing injury हुई है कि torn into pieces of the bone हो गया है या फिर कोई इतनी severe force आके हिट हुई है हमारे skull के साथ कि उसने skull में any kind of fracture cause कर दिया. अब जो skull में fractures होते हैं वो दो तरह के होते हैं. उसमें हमारे पास linear fracture भी हो सकता है, उसमें हमारे पास depressed fracture भी हो सकता है. Linear fracture से हम ये मतलब लेते हैं like this is a single flat platform. अगर इसके अंदर zigzagging pattern like this is the linear fracture, okay, and if there is this is a flat line, and if there is depression, any kind of depression, this is the depressed fracture. So skull के अंदर हमारे पास दो तरह के फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, एक लीनियर फ्रैक्चर हो सकता है, एक डिप्रेस फ्रैक्चर हो सकता है. ठीक है, जो डिप्रेस फ्रैक्चर होगा ना ऑफ द वर्ल्ड, उसकी वजह से हमारे पास हीमाटोमास बनेगी. हीमाटोमा एक्स्ट्रा ड्यूरल भी हो सकता है, दैट इज आउटसाइड द ड्यूरा मैटर, और सब ड्यूरल भी हो सकता है, दैट इज बिलो द ड्यूरा मैटर. ठीक है, इसके अलावा हम इसमें ये बात देख लेते हैं कि व्हेन एवर देयर इज स्ट्रक्चर ऑफ द बेस ऑफ द स्कल देयर इज CSF rhinorrhea फ्रॉम द नोज. Now we move on further towards the skull fractures. As we have already divided the skull on the basis of its anatomy into anterior cranial fossa, middle cranial fossa, or posterior cranial fossa. Whenever we are talking about the anterior cranial fossa or anterior fossa of the brain fracture, of the skull fracture, what does it happens? How we predict that there is a fracture of the anterior cranial fossa? We have some kind of symptoms like there is nasal bleeding, like there is periorbital hematoma, which is also known as raccoon's eye. There may be CSF rhinorrhea from the nose, and there will be the involvement of the cranial nerves, which range from 1 to 6. And when we talk about the middle cranial fossa fracture, middle cranial fossa fracture will present as bleeding from the ears, CSF otorrhea, that is CSF drainage from the ears. Cranial nerve involvement will be of cranial nerve 7 and 8. When we talk about the posterior fossa fracture, there will be bruising over the suboccipital region. Cranial nerve involvement will be from 9 to 11, and bruising over the mastoid region. Mastoid region पे अगर जो हमारे पास bruising बनेगी, it is also referred to as Battle sign. Now when we talk about the periorbital hematoma, or as we have told before, periorbital hematoma, which is the raccoon's eye, it should be differentiated from the black eye. जो black eye होगी ना वो superficial hematoma of the eyelid होगी, जो direct injury से हो रही होगी. लेकिन जो periorbital hematoma, it is not from the direct injury, it is basically the fracture of the anterior cranial fossa. Okay, then moving on towards the management of the skull injuries or the skull fractures. इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है, ATLS की अप्रोच फॉलो करनी होती है. as we have to follow the primary approach of the ATLS we have studied before. उसमें हमने ABCDE के लेवल पे चेक करना है. if the patient we have to identify the cause which is killing the patient, we have to correct that one, then we move on towards the fractures. if there is linear fracture, we will left that open, we will not do any kind of management, it will close by itself, means it will close, it will be managed conservatively. when there is depressed bone fracture, it will left open if it is not so deep. deepness का इसका अंदाज़ा या इसकी डेप्थ का अंदाज़ा हम इस तरह से लगाते हैं, जितनी बोन की थिकनेस होती है उससे ज़्यादा अगर हमारे पास फ्रैक्चर डीप है तो हम उसको मैनेज करते हैं. अगर उससे ज़्यादा डीप नहीं है, उसकी थिकनेस की अराउंड अबाउट इक्वल है,
तो हम उसको मैनेज नहीं करते, लेकिन वहाँ पे जितना मौजूद डिवाइटलाइज्ड टिश्यू होता है उसको रिमूव कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, अपने वुंड को क्लियर आउट कर लेते हैं, क्लीन आउट कर लेते हैं। उसके बाद हम उसको लेफ्ट ओपन कर देते हैं टू हील बाय इटसेल्फ। और अगर हमारा जो है वो फ्रैक्चर डिप्रेस्ड है, लाइक थिकनेस ऑफ द स्कल से, बोन थिकनेस से बहुत ज़्यादा है, इनवर्ड है, तो हमने क्या करना होता है, उसको ट्रीट करना होता है, हमने उस फ्रैक्चर को एलिवेट करना होता है। अगर हम इसको एलिवेट नहीं करते तो ये हमारे पास एनी काइंड ऑफ हीमाटोमा, अंडरलाइंग हीमाटोमा क्रिएट कर देगा। इससे फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशन होंगे, फिट्स हो जाएंगे और जो है हमारा पेशेंट है वो कोमा की तरफ मूव ऑन कर सकता है। अब बात कर लेते हैं ब्रेन इंजरीज़ की। ब्रेन इंजरीज़ जो है वो दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, प्राइमरी ब्रेन इंजरी और सेकेंडरी ब्रेन इंजरी। प्राइमरी ब्रेन इंजरी में दो तरह की इंजरीज आती हैं, काउप इंजरी और काउंटर काउप इंजरी। ठीक है, जो काउप इंजरी होती है वो ये होता है कि जो साइड ऑफ इम्पैक्ट है ना, जहाँ पे हिट हुआ है वहीं पे अगर इंजरी होती है दैट इज़ काउप इंजरी। अगर जहाँ हिट हुआ है उसके ऑपोजिट, लाइक फ्रंट पे हिट हुआ है और इंजरी बैक साइड पे हो रही है, तो दैट विल बी काउंटर काउप इंजरी। इस काउंटर काउप इंजरी के उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, कंकशन आ सकती है, बोन फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, एक्सोनल इंजरी हो सकती है, या फिर ब्रेन स्टेम कंट्यूजन हो सकती है। ठीक है, बात आती है सेकेंडरी ब्रेन इंजरी की। प्राइमरी ब्रेन इंजरी ये थी कि जो साइड ऑफ इम्पैक्ट थी वहीं पे इंजरी हो रही थी और इंजरी ही जो हो रही थी वही कॉज थी हर काइंड की जो कॉम्प्लिकेशन है उनके लिए। सेकेंडरी ब्रेन इंजरी होती है कि जो हमारे पास प्राइमरी इंजरी हो चुकी है उसकी वजह से हाइपोक्सिया हो रहा है, हाइपर कैपनिक इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रही है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज हो रहा है, तो ये सब कुछ जो होगा ये सेकेंडरी ब्रेन इंजरीज में इंक्लूड होगा। अब क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ब्रेन इंजरी जो है ना वो मेनली किसके ऊपर रिजल्ट करती होती है, ऑन द बेसिस ऑफ रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। वेन एवर देयर इज रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर देयर विल बी डैमेज टू द ब्रेन। सो अब हमने इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो होता है जब वो राइज होता है तो क्या होता है, सेरिब्रल परफ्यूजन टू द ब्रेन जो है ना वो रिड्यूस हो जाती है। अब सेरिब्रल परफ्यूजन टू द ब्रेन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसमें हम क्या कर लेते हैं, हमने ब्लड प्रेशर को सबट्रैक्ट कर देना होता है फ्रॉम इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ठीक है, एज इट इज़ मेंशन्ड हियर कि हमने क्या करना होता है, ब्लड प्रेशर सेपरेटेड फ्रॉम द इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ठीक है, अब होता है क्या है कि जब सेरिब्रल परफ्यूजन डिक्रीज़ होती है टू द ब्रेन उसकी वजह से क्या होता है, सेरिब्रल इस्कीमिया हो जाता है। जब सेरिब्रल इस्कीमिया होता है तो मेन जो हमारे मैड्यूला ऑब्लोंगेटा के अंदर जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं, जो सिस्टम मौजूद है जो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कंट्रोल करे, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करे, उनकी सप्रेशन हो जाती है। ठीक है, उनकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज़ होगा इन द सिस्टमिक ब्लड प्रेशर एंड द एंड ब्रेडिकार्डिया। इस सारे जो हमारे पास प्रोसीजर हो रहा है इसको हम कहते हैं कि कुशिंग रिफ्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे पास हेड इंजरी का पेशेंट है वो बेसिकली प्रेजेंट किस तरह करता है, जो हेड इंजरी का पेशेंट है उसके अंदर हेडेक हुआ होता है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, अनकॉन्शियसनेस होती है, हाइपरटेंशन होती है, पैपुलर एडीमा होता है। अगर कोई हीमाटोमा बना हुआ है तो हमारे पास एक ल्यूसिड इंटरवल आता है। ल्यूसिड इंटरवल हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि जो पेशेंट है ना जब उसको इंजरी हुई है एट द साइट ऑफ इम्पैक्ट, जैसे ही इंजरी हुई है वो अनकॉन्शियस हो गया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम लाइक 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद वो वापस होश में आ गया। ठीक है, उसने अपने कॉन्शियसनेस रीगेन कर लिए, तो इसको हम कहते हैं ल्यूसिड इंटरवल। ये हमारे पास एक डायग्नोस्टिक पॉइंट होता है इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्स्ट्राड्यूरल हीमाटोमा एंड सबड्यूरल हीमाटोमा विच वी स्टडी फर्दर अहेड। Now when we are moving towards the management of the brain injury, we have to follow that ATLS approach। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइमरी सर्वे कर लेंगे, रिसोसिटेशन कर लेंगे। प्राइमरी सर्वे एंड रिसोसिटेशन में हमने क्या करना होता है कि हमने देख लेना होता है कि जो हमारा पेशेंट है उसका एयरवे जो है ATLS अप्रोच के मुताबिक उसका एयरवे ठीक है, ब्रीथिंग ठीक है, सर्कुलेशन ठीक है। देन हमने क्या करना होता है कि हमने अपने सारे के सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है ATLS को, लेकिन मेन हमारा जो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू फोकस रहता है वो ये होता है कि हमने सर्वाइकल स्पाइन को जो है ना इमोबिलाइज करके रखना है, उसको हमने इंजर्ड नहीं होने देना। इस तरह हमें स्पाइनल कॉर्ड का भी ख्याल रखना है। सेकेंडरी सर्वे में क्या होता है कि हमने हेड टू टू एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट करनी होती है थ्रू न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। इस जो थोड़ा न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट है वो हमने परफॉर्म करनी होती है बाया GCS इज़ ग्लासगो कॉमा स्केल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम ना हेड इंजरीज़ को ग्रेडिंग कर देते हैं उनकी। अगर माइल्ड हेड इंजरी है तो हमारा जो ग्लासगो कॉमा स्केल है वो 14 to 15 के दरमियान लाई करता है। मॉडरेट हेड इंजरी है तो 9 to 13 के दरमियान लाई करता है। स्वेयर हेड इंजरी है तो 3 to 8 के दरमियान लाई करता है। और जो ग्लासगो कॉमा स्केल है वो बेसिकली ये है जो अब आपको नज़र आ रहा है। इसमें हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक आई ओपनिंग होती है, एक वर्बल रिस्पॉन्स होता है और एक मोटर रिस्पॉन्स होता है। इनमें हम जिस तरह हमारे एक क्लास में स्टूडेंट होता है ना, डल स्टूडेंट, उसको हम 0 मार्क्स देते हैं, फिर थोड़ा सा ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है उसको हम फर्दर प्रोसीड ऑन करते जाते हैं, अच्छे मार्क्स देते जाते हैं। तो ये भी बेसिकली वैसे है। अगर आई ओपनिंग पेशेंट की बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो उसको हम ग्रेड करेंगे 1। अगर
लाइक आपने पेशेंट को किसी एरिया में इंजरी थी, आपने उसके ऊपर हाथ रखा, प्रेशर अप्लाई किया, पेशेंट को पेन हुआ, पेशेंट ने आई ओपन किया, दैट इज़ वी विल गिव हिम अ स्कोर ऑफ 2. अगर आपने पेशेंट को मुखातिब किया, लाइक हिज नेम इज, लाइक यू कॉल हिज नेम रॉबर्ट, ही रिस्पॉन्ड टू यू, ही ओपन्स हिज आई, देन वी give him the score as 3. And if his eye movement is spontaneous, he is blinking normally, he is responding normally, then we will give him as a score of 4. When we move towards the verbal response, उसमें ये होगा कि अगर पेशेंट बिल्कुल भी नहीं बोल रहा तो हम उसको देंगे स्कोर 1. अगर पेशेंट बोल रहा है उसमें सिर्फ साउंड्स है लेकिन वर्ड्स नहीं है तो 2. अगर पेशेंट बोल तो रहा है लेकिन उसके वर्ड्स कोहेरेंट नहीं है, लाइक हमने उससे पूछा आप कैसे हो, तो वो ये बताने की बजाय कि मैं ठीक हूँ वो कुछ और बोलता है, ठीक है, दैट इज़ नॉट कोहेरेंट. डिसओरिएंटेड अगर कन्वर्सेशन उसकी वो कन्फ्यूज्ड है, उसको नहीं समझ आ रहा है क्या बोलना है, तो उसको हम ग्रेड करेंगे 4. अगर वो नॉर्मल कन्वर्सेशन है उसकी, लाइक जिस तरह हम उससे पूछ रहे हैं हाउ आर यू, ही इज़ रिप्लाइंग अस आई एम फाइन, तो वो हम ग्रेड क्या रेफर करेंगे इसको 5. नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द मोटर रिस्पॉन्स. मोटर रिस्पॉन्स में क्या होगा, इफ़ देयर इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग बाय द पेशेंट देन वी विल रेफर हिम टू एज अ स्कोर ऑफ 1. एंड इफ़ देयर इज़ लाइक ओनली द रिफ्लेक्सेस विद ऑन एक्सटेंशन, लाइक सिर्फ एक्सटेंशन के जो रिफ्लेक्सेस है ना वो पेशेंट में है तो हम उसको ग्रेड करेंगे 2. अगर सिर्फ फ्लेक्शन के रिस्पॉन्स है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन के रिस्पॉन्स है तो हम उसको ग्रेड करेंगे 3. अगर वो अपना लाइक वेट ड्रॉ कर लेता है, आप पेन जहाँ पे पेशेंट को इंजरी आप वहाँ पे हाथ रखते हो तो पेशेंट अपना दैट पार्ट दैट लिम्ब जो है ना वो मूव ऑन कर लेता है, वेट ड्रॉ कर लेता है, तो दैट इज़ 4. और अगर हम पेशेंट को कहते हैं कि लोकलाइज़ करो पेन को, कि आपको दर्द कहाँ पे हो रहा है, अगर वो लोकलाइज़ कर देता है दैट विल बी 5. एंड अगर वो बिल्कुल अपने तमाम एक्टिविटीज़ नॉर्मली परफॉर्म कर रहे हैं तो दैट विल बी 6. अब यहाँ से एक हमारे पास जो बात है याद रखने वाली वो ये होती है कि हमें एक MCQ आ जाता है कि डेड पर्सन का GCS स्केल क्या होता है. डेड पर्सन का GCS स्केल 0 नहीं होता कभी भी. डेड पर्सन का जो GCS स्केल होता है वो 3 होता है, क्योंकि जो GCS स्केल होता है वो हम इन तमाम चीज़ों का, आई मूवमेंट्स का, वर्बल रिस्पॉन्स का और मोटर रिस्पॉन्स का सम लेते होते हैं. So when the patient is dead, his eye opening is nil, that is 1. When the patient is dead, there is no sounds, no words, no response, that is 1. And when the patient is dead, there is no motor response. So 1 plus 1 plus 1 will result in total of 3. तो डेड पर्सन का जिसके स्केल में क्या वैल्यू होती है, 3 होती है. अब हम जो है ग्लासगो कॉमा स्केल जो होता है ना ये हमारे पास वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, लेकिन इसकी ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं. लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव अ पेशेंट जिसको एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन हुई हुई है, वो बोल तो वैसे ही नहीं सकता, तो फिर हम उसके अंदर इस स्केल के मुताबिक उसको स्कोरिंग नहीं कर सकते. हमने फिर क्या करना होता है, हमने देख लेना होता है अगर हमारे पेशेंट जो है उसको एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन हुई हुई है, वो बोल नहीं सकता, तो हम अपना वर्बल रिस्पॉन्स को छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं. हम इन 2 बेसिस पे, यानी कि आई ओपनिंग के बेस पे और मोटर रिस्पॉन्स के बेस पे अपने पेशेंट को जो है वो स्कोरिंग करते हैं. अब उसके अलावा हम कह देते हैं अगर फॉर एग्जांपल हमारे जो GCS स्केल है उसकी वैल्यू हमारे पास आती है 15, ठीक है, तो 15 को हम लाइक ये नहीं लिख देंगे कि GCS इज इक्वल टू 15, वी विल राइट इट एज आई रिस्पॉन्स 4, वर्बल रिस्पॉन्स 5 एंड मोटर रिस्पॉन्स 6, दैट इज़ E4 B5 M6. जब इन सबको हम कंबाइन करते हैं, ऐड करते हैं, दैट विल रिजल्ट इन 15. Now if we consider the limitations of GCS, as I have told you before, if there is a patient with endotracheal intubation, he cannot speak. When he cannot speak, we will assess him on the basis of eye opening and motor response. And if there is a patient who is in the state of shock, hypoxemia, drug overuse, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, तो उसका मोटर रिस्पॉन्स वैसे ही वीक होगा, फीबल होगा, तो उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है फ्रॉम द ब्रेन इंजरी, और उसको हम GCS के क्राइटेरिया पे मेजर नहीं कर सकते. लाइक इफ़ वी हैव अ पेशेंट विद ऑर्बिटल ट्रॉमा कि उसकी आई ओपनिंग तो हो ही नहीं रही, तो हमने उसके आई ओपनिंग को, यानी कि आई ओपनिंग वाले पार्ट को निगेट करते हुए हमने वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स हमने पेशेंट को एसेस करना है. अब एक चाइल्ड है जो 36 मंथ्स का है, लाइक अभी सही से बोल नहीं सकता, सही से चल नहीं सकता, तो ये सारी लिमिटेशंस के बावजूद भी हम जो वर्ल्ड वाइड यूज़ करते हैं वो GCS ही यूज़ करते हैं, ठीक है. रिगार्डिंग द निमोनिक ऑफ GCS, यू हैव टू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो in which I have told the mnemonic to remember the Glasgow Coma scale. What are the indications of CT scan in head injury? Now moving on. हेड इंजरी में हमें CT स्कैन कब कब करवाना है, जब हमने ये देख लेना है कि हमारे पेशेंट का जो ग्लासगो कॉमा स्केल है वो लेस देन 13 आ रहा है,
या कॉन्जेक्टिव 2 वार्ड्स के अंदर उसका ग्लासगो कॉमा स्केल 13 से कम होने लगा है, ठीक है, या फिर उसके अंदर सस्पेक्टेड कोई ओपन डिप्रेस या बेस ऑफ द स्कल का फ्रैक्चर, पेशेंट हैज़ मोर देन 1 एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग, माइल्ड हेड इंजरी इन द पेशेंट विद एज ग्रेटर देन 65 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। डेंजरस मैकेनिज्म ऑफ इंजरी में क्या होता है, लाइक अगर कोई पेडिस्ट्रियन है दैट इज़ हिट बाय अ बाइसिकल, हिट बाय अ कार, या और जो अगर हमारे पेशेंट है अगर उसको हिट हुआ है और उसकी जो फॉल करने की डिस्टेंस है वो ज़्यादा लाइक 1 मीटर है या 5 स्टेयर्स हैं, तो भी हमें सीटी स्कैन परफॉर्म कराना है। इजेक्टेड फ्रॉम द व्हीकल, किसी गाड़ी में से लाइक अगर एक्सीडेंट हुआ कार की विंड स्क्रीन से वो निकल के बाहर रोड पे जाके गिरा, इजेक्टेड फ्रॉम द व्हीकल, तो हमें जो है सीटी स्कैन कराना है। अगर हमारे पास जो पेशेंट है उसमें जो कॉन्शियसनेस है वो लॉस की फॉर 30 मिनट्स, मोर देन 30 मिनट्स, तो भी हमने क्या कराना होता है, सीटी स्कैन कराना होता है, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं कि हमने ना डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए हमारा जो हेड इंजरी का पेशेंट है उसके लिए। अगर तो हमारा पेशेंट जो है ना वो कॉन्शियस है और वेल ओरिएंटेड है विद टाइम, स्पेस, प्लेस एंड पर्सन, तो हम उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर उसका सीटी स्कैन हमने करवाया है और वो नॉर्मल आया है तो भी हम अपने पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमने ये सारा कुछ किया, लाइक उसकी कॉन्शियसनेस लेवल, उसके ओरिएंटेशन लेवल, या जो हमने सीटी स्कैन वगैरह परफॉर्म की, हमने उस केस में परफॉर्म किया जब हमें पता था कि हमारा जो पेशेंट है वो अल्कोहल अब्यूज़ का नहीं है, ड्रग इंटॉक्सिकेशन का नहीं है। अगर इन सब का इन्फ्लुएंस है तो हम अपने पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि ड्रग ओवर यूज़ का इफ़ेक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम ही कम होता है, फ़ौरन से कम नहीं होता। इसके अलावा जो है हमने ये डिस्चार्ज क्राइटेरिया हो गया। अब हमने देखना है कि हमारा पेशेंट अब हमने डिस्चार्ज कर दिया है, लेकिन उसको डिस्चार्ज करने के बाद कुछ ऐसे सिम्टम्स आने लगे हैं जिसकी वजह से उसको वापस हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। वो क्या क्या हो सकती है, जो होता है ना, सीक इमीडिएट मेडिकल अटेंशन आफ्टर डिस्चार्ज है, यही टेक होम मैसेज होता है कि अब हम अपना जो पेशेंट है उसको हमने डिस्चार्ज कर दिया। अब हम उसको बताएंगे कि अगर आपको यहाँ से जाने के बाद कोई हेडेक परसिस्ट रहता है काफ़ी दिनों के लिए, लाइक फ्रॉम आवर्स टू अ डे, तो आपने हॉस्पिटल को रेफ़र करना है। अगर आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाए, परसिस्टेंट रहे, तो आपने जो है हॉस्पिटल को रेफ़र करना है। ड्राउजीनेस हो, विजुअल डिस्टर्बेंस आने लगे, लिम्ब वीकनेस या नमनेस होने लगे, तो आपने हॉस्पिटल को रेफ़र करना है, ठीक है। अगर जो इंडिकेशंस होती हैं, आपने मूविंग ऑन टूवर्ड्स इंडिकेशन फॉर एडमिशन इन हेड इंजरी पेशेंट, उसमें क्या होता है कि अगर पेशेंट ने मोर देन 5 मिनट्स के लिए अपना कॉन्शियस लेवल लॉस किया है तो उसको हर हाल में हमें एडमिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में। उसकी जो वर्बल रिस्पॉन्स है वो कन्फ्यूज्ड है, इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस है, ठीक है, तो हम उसको एडमिट करना हॉस्पिटल में। अगर उसका जो हेडेक है वो वर्सन हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसको नॉजिया, वॉमिटिंग है, ड्रग इंटॉक्सिकेशन हुई है, एनी काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन हुई है, और लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबल एडल्ट एट होम है जो उसकी केयर नहीं कर सकता, तो हमें पेशेंट को क्या करना है, हॉस्पिटल में एडमिट करना है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में एक जो होता है ना वो कॉज ओरिएंटेड होता है, लाइक अगर हेड इंजरी की स्कल फ्रैक्चर की वजह से पेशेंट को ये सब कुछ हो रहा है तो हमें स्कल फ्रैक्चर को ट्रीट करना है। अच्छा, अब हमारे पास जो अगला प्रोटोकॉल होता है वो क्या होता है, जो एनी काइंड ऑफ हेड इंजरी में बेसिकली होता क्या है, रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो जाता है, जैसे हमने भी पहले पढ़ा। तो रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए हम कौन कौन से ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए जो हम ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली हमारे पास होती है मैनिटोल, ये ऑस्मोटिक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा हम यूज़ कर लेते हैं बार्बिट्यूरेट्स, हम स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, हम हाइपर वेंटिलेशन यानी कि हम एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को वॉश आउट करने के लिए हाइपर वेंटिलेशन का यूज़ करते हैं, हम फ्यूरोसमाइड दैट इज़ लूप डायूरेटिक इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इंट्राक्रेनियल प्रेशर।